यस मैम, मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है. इट विल बी अपीयर ऑन माय कैलेंडर. ओके, देन आई विल Yeah, से. sir, sure. या, Sure. Thank you. थैंक यू मैम. Yes, good morning, everyone. As in the previous session, we have discussed about the third chapter. We were discussing about some concepts in third chapter. So quickly revise those terms we have discussed yesterday. What is race condition? Yes. What is race condition? What is race condition? What is critical section? And what is mutual exclusion? Quickly. When more than one process needs to access the same section, yes. When two processes starts execution at same time at same memory, when more than one process needs same resource, it's called race condition. Okay. What is critical section? Yes, what is critical section, guys? What is mutual exclusion? Anyone?
it means I should ask from specific persons, right? If you are not giving answers by your own. When shared variables can be accessed, we can access shared memory in critical section. Widening race course is a mutual exclusion maybe. So basically when we talk about critical section, it is a section of a code or a section where you have that is very critical to handle, in which it is a code of segment where the shared variables can be accessed, right? So when we say the critical section, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, critical section यहाँ पर हम किसे बोल सकते हैं। हम लोग क्या आप लोगों ने ट्रेन्स जिस पर चलती हैं, दैट पटरी देखिए, हैव यू सीन दैट? यस, कैसा होता है आपने देखा होगा कभी कभी, क्या होता है वो जो उन उन लोगों ने जहाँ पर हम जिस पे ट्रेन चलती है, वो रास्ते आपस में कभी कभी क्या होते हैं, डाइसेक्ट करते हैं। क्रॉसिंग्स होती हैं जहाँ से एक ही रास्ते दो रास्तों में डाइसेक्ट होते हैं, दो रास्ते एक ही रास्ते में आकर मिलते हैं। हैव यू सीन दैट डाइसेक्शन इन द रेल लाइन? Yes, have you seen that dissection? Right. So if that section is a critical section, अब वहां पर क्या होता है, जब दो रास्ते एक रास्ते में आके मिलते हैं, जो दो रेल लाइंस हैं उसको वो डाइसेक्ट होती हैं और एक रास्ते में आके मिलती हैं, तो उस सेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन हियर। अब वहां पे हम एक टाइम पे एक ही ट्रेन को चला सकते हैं एक लाइन पर। अब दो रास्ते फिर एक रास्ते में आकर मिलेंगे और दोनों रास्तों में से एक ही टाइम पर दोनों ट्रेन आ जाएं, तो इट वुड बी वेरी क्रिटिकल टू हैंडल, राइट? सो दैट सेक्शन इज अ क्रिटिकल सेक्शन हियर, राइट? मींस जब आपके सिस्टम में जो प्रोसेसेस किसी रिसोर्स को, किसी कोड को, किसी सेगमेंट को शेयर कर रहे हैं, उस सेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन बोल रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर? ऑल्सो व्हाट इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन? अब हमने क्या किया, उन दोनों ट्रेन में से मैं किसी एक ही ट्रेन को अलाउ कर सकती हूँ उस रेल लाइन पर, अदरवाइज इट वुड नॉट बी पॉसिबल, इट वुड क्लैश द ट्रेन्स। क्लैश होगा ना, क्योंकि व्हेन द रेल लाइंस कम्स इनटू वन लाइन, आपकी जो रेल लाइंस हैं वो एक ही लाइन में आकर मिक्स हो रही हैं, तो वो जो रेल लाइन एक ही है तो उसमें एक टाइम पे एक ही ट्रेन जा सकती है? ये ऐसा पॉसिबल है कि एक ही रेल लाइन पे दो ट्रेन चल जाएं? पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन हियर, मींस आई कैन अलाउ वन प्रोसेस एट अ टाइम ओनली। What I'm saying here, I can allow in this situation, in the critical section, I can allow only one process at a time, right? So if these terms are not clear with you, I'm saying you again and again, the whole chapter will be waste for you, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में अब यही तीन जो चीजें हैं, यही तीन कॉन्सेप्ट्स मैं यूज करूंगी बार बार। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, then please you can ask me again, otherwise you will lost all the chapter in this, right? So critical section is a section where you are placing a shared resources, shared, for example, I'm giving you certain examples again here. Process A and process B. What I'm saying here is, let me open the PPT. Okay, what I'm saying here, okay, for example, you are having a process A, you are having a process you are having process A and you are having a process B. प्रोसेस ए कुछ लाइन ऑफ कोड्स हैं हमारे पास और प्रोसेस बी में भी कुछ लाइन ऑफ कोड है हमारे पास। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए इज यूजिंग अ वेरिएबल काउंट एंड प्रोसेस बी इज आल्सो यूजिंग अ वेरिएबल काउंट विद डिक्रीमेंट।
Now this variable, count variable, is shared by process A and process B. This is a count variable which is shared by both of the processes here, and this is known as your shared variable. ऐसा होता है बहुत बार कि कुछ processes ऐसे variables use करते हैं जो sharing में हो, तो this is your shared variable. Basically, because both of the processes are using same variable, right? The same way, if I will take another example, I am taking another example. You are having another process, for example, you are having a process 3 and you are having a process 4, right? Process 3 is writing in file 1 and process 4 is performing a read operation on file 1. So both of the processes are accessing the same file. It is file 1 and file 1. So basically your file 1 is your shared file. I'm saying here. So your file 1 is your shared file. So this is a critical section here, right? So file 1 is a critical section here. आपका वो source of code, वो segment of code जो क्या कर रहे हैं, दूसरे processes share कर रहे हैं. तो basically ये जो आपकी file हुई, ये shared हुई. तो ये आपका जो section हुआ वो critical है. Critical क्यों है? क्योंकि दोनों ही processes उसको एक्सेस कर रहे हैं. अब क्या होता है जब भी हम आईपीसी की बात करते हैं, वो हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं सिस्टम में, इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव. फाइन. अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस पैरेलली काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास अगर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस पैरेलली काम कर रहे हैं तो, और वो क्या करें, कोऑपरेटिंग प्रोसेस है तो इट मींस उनके पास जो डेटा है वो शेयर्ड है. They are using some shared resources in the system. So वो क्या करेंगे, एक दूसरे को affect करेंगे. We know that. That is called cooperating processes. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? We need to make them in synchronization. That is called, we are saying here is process synchronization. We have to make sure that the processes in the system, like cooperating processes, for cooperating processes we are making the system in sync. आई एम सेइंग हियर इज कि आपके कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की वजह से हमें सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज इफ यू आर हैविंग इंडिपेंडेंट processes in the system, if they are running parallelly they will not affect each other. If your cooperating processes are running parallelly, they will affect each other because they are शेयरिंग सम रिसोर्सेज इन द सिस्टम. नाउ इफ दे आर शेयरिंग, अगर देखो ये पहले राइट कर रहा है और ये बाद में रीड कर रहा है, तो अगर इसने ए की वैल्यू राइट की 1 और इसको रीड क्या होनी चाहिए 1, लेकिन अगर इसने पहले रीड कर ली तो ए की वैल्यू शायद कुछ और मिलेगी, और इसने बाद में राइट की तो इसको वो ए की वैल्यू नहीं मिल पाएगी. तो द सिंक्रोनाइजेशन वुड नॉट बी हियर. टू मेक द सिस्टम systematic, to make our processes in sync, we are using these concepts here, right? इसीलिए हम इन problems को, इन sections को कुछ नाम दे रहे हैं, कुछ terms हम use कर रहे हैं, that we are saying a critical section here. So in case of process A and process B, your shared variable is your critical section, right? Your shared file is your critical section here. If process 3 and 4 is using a printer here, printer A, right, it is also using a printer here, printer A, but printer A is a shared resource they are using. So these are the things which the processes can use in a shared manner, right? So what I am saying here is, मैंने जैसे भी एक एग्जांपल भी दिया कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है, ऐसे आपने एक डाइसेक्शन देखा होगा, when your two of the rails come together and they are like this. रुको ना एक मिनट. अब देखो, अगर ये क्रॉसिंग है, ठीक है, क्रॉसिंग करके चाहे वो अपनी अपनी लाइंस पे जा रहे हैं, चाहे वो क्रॉसिंग करने के बाद एक लाइन पर जा रहे हैं,
ठीक है, अगर ये क्रॉसिंग कंप्लीट होने के बाद एक लाइन पे जा रहे हैं या क्रॉसिंग कंप्लीट होने के बाद डिफरेंट लाइंस पे जा रहे हैं, तो अगर सपोज यहाँ से कोई ट्रेन ए आ रही है और यहाँ से कोई ट्रेन बी आ रही है, तो ये जो सेक्शन हुआ वो क्रिटिकल है क्योंकि ये दोनों के बीच में शेयरेबल है. आई एम सेइंग हियर इज दिस सेक्शन इज अ क्रिटिकल सेक्शन हियर. मैं इस सेक्शन को क्या बोलूंगी यहाँ पर? क्रिटिकल सेक्शन. राइट, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रेन के बीच में शेयर हो रहा है. राइट, अब मैंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? आई सेड इट म्यूचुअल एक्सक्लूजन. मतलब एक टाइम पे मैं एक ही ट्रेन को यहाँ से एक्सेस प्रोवाइड करूंगी और उस टाइम पे दूसरी ट्रेन को मैं क्या कर दूंगी? ब्लॉक. This is what we said a mutual exclusion here, right? So these are the terms we have discussed in the last session. I hope these terms are clear with you. And these are the three criteria. Now, whatever the solution we will discuss, these three criteria should be fulfilled. The criteria should be mutual exclusion, progress, and bounded weight. And this is the optional criteria we are having. Fine. So moving further, we are also discuss the synchronization method. मतलब अगर हम processes को sync करते हैं आपस में उनका सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करते हैं, तो दो तरीके के मेथड्स हम यूज अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे. एक तो होता है बिजी वेटिंग, एक होता है विदाउट बिजी वेटिंग. बिजी वेटिंग तो क्या है कि आपका बार बार वो इनफाइनाइट लूप में ही नॉक करता रहे, प्रोसेस को पूछता रहे कि नाउ द क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री और नॉट. दैट इज अ बिजी वेटिंग प्रोसेस. Right, I have already told you in the last session. So there are some list of proposals we are having. अब मेरे पास कुछ solutions हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. कौन सी प्रॉब्लम को? क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को. क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ प्रपोजल्स, दैट इज सॉल्यूशंस वी आर हैविंग. अब कौन सा सॉल्यूशन इनमें से सुटेबल है जो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? अब हम एक एक करके सारे जो सॉल्यूशंस है उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर आपको इसमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है वो सुटेबल है हमारी प्रॉब्लम के लिए वो पता चलेगा. राइट, so let us discuss one by one each and every solution we are having. The first method to solve a critical section problem in the system is disabling interrupts. What is the first method we are having? It says disable interrupts. Ab disable interrupts, you know that what is an interrupt? Yes. What is an interrupt? Interrupt किसे बोलते हैं हम लोग? When I said interrupt, what is an interrupt in the system? Yes, anyone? Signal to the processor Yes, indicating an event that an immediate action is to be needed. correct. Very good. Input output operation, it may be. Yes, anyone else? So interrupt is a kind of a signal we are giving to the processor, the process which requires the immediate attention of the processor at that time, which is known as interrupt here. राइट, तो इंटरप्ट क्या है हमारे पास कि आपके प्रोसेसर को हम सिग्नल देते हैं कि किसी प्रोसेस को इमीडिएट अटेंशन चाहिए उसका, तो दैट इज वी आर आल्सो सेइंग इंटरप्ट आर द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वी आर हैविंग इन द सिस्टम. राइट, नाउ यू नो दैट व्हाट इज द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस. जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है उनको पहले एग्जीक्यूट करते हैं. तो बेसिकली हम पहला मेथड क्या कर रहे हैं कि हम इंटरप्ट डिसेबल कर दें. अब इंटरप्ट डिसेबल करने का क्या मतलब है कि जो भी हमारे हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं या ऐसे प्रोसेस जिनको सीपीयू की अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, इमीडिएट अटेंशन की, हम उन्हें डिसेबल कर रहे हैं. द आइडिया हियर इज प्रोसेस डिसेबल इंटरप्ट्स हियर, enter into the critical region, enable interrupts when it leaves the critical region. What I'm saying here, अब देखो इसमें आइडिया क्या है हमारे पास कि जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिटिकल रीजन में एंटर करता है, अब देखो क्रिटिकल रीजन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक जर्नल कोड मैं लिख रही हूँ. सबसे पहला आता है आपका एंटर इनटू क्रिटिकल रीजन. यू विल चेक द एंट्री पार्ट. राइट, आई एम राइटिंग हियर द एंट्री, नॉट एंटर. That is entry in critical section, then accessing the critical section, so this is the critical region, then exit from the critical region, then you are executing your normal code, or you can also say that that is non-critical section.
So this is the basic code we are having for the critical section region. critical section को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री पे चेक, जैसे कि आप क्या करते हो किसी भी मॉल में जाते हो तो एंट्री और एग्जिट आर द टू गेट्स वी आर हैविंग, एंट्री गेट एंड एग्जिट गेट, राइट. एंट्री पे आपको चेक कर किया जाता है कि यू आर सेफ टू एंटर इनसाइड, then you can access that part, then you can exit whenever you have accessed that part. आप enter करते हो, एंट्री पे अगर कुछ चेकिंग होती है तो यू गो थ्रू दैट चेकिंग, जैसे कि इफ यू हैव ट्रेवल्ड समवेयर तो हमारी सिक्योरिटी चेकिंग्स भी होती हैं. तो एंट्री गेट पे हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी चेकिंग्स. फिर हम एक्सेस कर पाते हैं जिस भी चीज को हमें वहां पर एक्सेस करना है, और जब तक मैं उसे एक्सेस कर पा रही हूँ उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, एग्जिट कर देती हूँ. बट यहाँ पे जो हम सेक्शन एक्सेस करने वाले हैं वो क्रिटिकल सेक्शन है. क्रिटिकल सेक्शन में क्या मतलब है कि दिस सेक्शन इज क्रिटिकल, सो आई कैन अलाउ वन पर्सन एट अ टाइम, राइट. सो टू मेक आवर प्रोसेस इन सिंक, उसी क्रिटिकल सेक्शन है तो मुझे पता है कि ये शेयर्ड रिसोर्स है, तो शेयर्ड रिसोर्स है तो क्या क्या मतलब है कि मैं एक ही टाइम पे एक पर्सन को अलाउ करूं ताकि जो मेरी क्रिटिकलिटी है सिस्टम की वो मेंटेन रहे, वो ऐसे क्रैश नहीं हो. तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग दिस मेथड सेज हियर इज कि जैसे ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है कोई प्रोसेस, वो क्या करेगा, जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा वो इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देगा. समझ रहे हो, इंटरप्ट्स को डिसेबल करने का क्या मतलब है कि कोई और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया और उसको भी यही क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना हुआ तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर? इट एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड disable the interrupts. When it leaves the critical section, it enable the interrupts. What is the idea is of this method we are using? अब आप खुद से बताओ कि पहली बात तो ये, अगर मैंने इंटरप्ट मान लेते हैं, मैंने हाई प्रायोरिटी जो प्रोसेस है उनको डिसेबल कर भी दिया, तो मान लेते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. ट्रू. If I disable the interrupts in the system, let us okay, this is possible, they cannot now access the critical section. The process who is accessing this critical section, they are only allowed to enter into the critical section. But what is the problem of this idea we are having? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो मैंने क्या बोला था, कोई भी सोल्यूशन हम चेक करेंगे तो क्या हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस अटेन कर पा रहे हैं, पहले तो हमें वो चेक करना है. तो सबसे पहले आप बताइए कि जो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था क्या वो फुलफिल हो पाया या नहीं. फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था कि वी कैन अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. तो कोई भी सिचुएशन हो, क्या एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है? इफ यू डिसेबल द इंटरप्ट्स, कोई और नहीं जा सकता क्रिटिकल सेक्शन में? इज इट पॉसिबल? क्या हमारे सिस्टम में सिर्फ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं? नो मैम. सो इट इज नॉट पॉसिबल ना, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अटेन नहीं हो रहा है यहाँ. तो देखो मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, अगर मान लेते हैं इंटरप्ट मैंने डिसेबल कर दिए, ठीक है, अब मतलब कोई हाई प्रायोरिटी टास्क मेरा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता, चलो मान लेते हैं. लेकिन अगर मेरा ये प्रोसेस P1 इसको एक्सेस कर रहा है और अगर ये बीच में से प्रिम्प्ट हो जाता है तो क्या गारंटी कि प्रोसेस P2 यहाँ पर नहीं जा सकता, राइट. और प्रोसेस P2 तब तक इसमें काम कर रहा है तो प्रोसेस P1 तो क्रिटिकल सेक्शन में फिर से आएगा ना. व्हाट आई एम सेइंग हियर इज इफ यू आर हैविंग अ एंट्री, राइट, इफ यू आर हैविंग अ क्रिटिकल सेक्शन जिसमें मैं एक ही प्रोसेस को अलाउ कर रही हूँ, और दिस इज यू आर हैविंग अ एग्जिट. प्रोसेस P1 इज एंटर्ड इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, उसने एंट्री गेट से जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करके वो एंटर कर गया है. अब P1 इसको यूज कर रहा है और बीच में से मान लेते हैं ये प्रिम्प्ट कर जाता है, ठीक है. अब प्रिम्प्ट कर गया तो P2 ने भी एंट्री गेट से एंट्री ले ली और P2 अब इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है. तो P1 क्या करेगा, जैसे ही उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन खत्म होगा वो फिर से क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने आएगा. तो ऑलरेडी दूसरा प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, तो एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस हो गए क्रिटिकल सेक्शन में, तो दिस इज वायलेटिंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. तो जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही वायलेट हो गया है तो दूसरे को तो चेक करने का मतलब ही नहीं है अभी यहाँ पर. It is not following the first criteria here, so it is nothing to go for the second one. So this process, this method is not suitable. What I am saying here is this method is not suitable for
critical section problems. If you are disabling the interrupts and you enter into the critical section, और जब आपने critical section leave किया तो आपने उसे enable कर दिया, तो ऐसा भी possible है कि दूसरे processes उस time पे enter कर जाए, apart from high priority process only, right? So this disabling interrupt is a not a गुड सोल्यूशन. ये मेथड हमारा इम्प्लीकेबल नहीं हो सकता है सिस्टम में. देखो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं वो भी यहाँ पर लिस्टेड आउट है. एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप कभी भी इंटरप्ट को अनेबल डिसेबल नहीं कर सकते हो, राइट? मतलब क्या है कि जैसे अगर इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है. जैसे कि मैं बोलूं कि मैं अभी अपने ऑनगोइंग सिस्टम में डिसेबल कर देती हूँ इंटरप्ट्स को. इंटरप्ट्स क्या हो सकते हैं? हाई प्रायोरिटी प्रोसेस. हाई प्रायोरिटी प्रोसेस किसके हो सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स के भी हो सकते हैं, राइट? तो आप उन्हीं प्रोसेसेस को जो आपके सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, लाइक दे आर हैंडलिंग द ब्राइटनेस ऑफ द सिस्टम, दे आर हैंडलिंग द बैटरी सेवर पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर हैंडलिंग द योर हार्डवेयर रिसोर्सेज इन द सिस्टम. आप उन्हीं प्रोसेसेस को डिसेबल कर दोगे तो योर सिस्टम विल नॉट वर्क. Are you getting? So the problem, if you disable the interrupts, you can crash your system. It is possible here, right? So you might never enable. ये भी हो सकता है कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करने के टाइम पे अनेबल करना ही भूल जाए. It is also possible ना कि there is a possibility if the process primed somewhere and it will not come again. देखो possibility दूसरी भी क्या है मेरे पास कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बोला कि मेरा जो प्रोसेस है वो एंटर किया क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, उसने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस किया और फिर यहाँ से एग्जिट कर गया. अब जब प्रोसेस P1 इसमें काम कर रहा था वो बीच में प्रिम्ट हो गया है. अब प्रिम्ट होने के बाद हो सकता है कि जिस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वो प्रिम्ट हुआ था वो उसे मिले ही नहीं और वो वापस आए ही नहीं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल. If you recall the concepts of your states, process states you are also having a suspend state. Remember, in the process states you are also having a suspend states for the process. If the process goes in between the critical section and may be suspended due to some of the reasons in the system, it may not come again into the critical section. तो जब तक वो critical section से exit नहीं करेगा आपके सारे के सारे interrupt disable रहेंगे. It is also a possibility process might never enable the interrupts which will crash your system. Are you getting this point? Yes, ma'am. Yes. So this is a possibility. So it will create a problem in the system. So it is not a good idea to disable the interrupts. Firstly, second possibility, second problem we are getting in this solution is would not work on multi-core systems. Means if you are working on a single core system in your laptops or in your mobile phones, if you are working in a single core systems means जिसमें हमारे पास multiple processes नहीं है, उसमें शायद ये काम कर सकता है. मतलब काम तो बिल्कुल भी हम इसे प्रेफरेबल नहीं कहेंगे, बट अगर हम बोलेंगे अगर मैं डिसेबल कर रही हूँ इंटरप्ट्स, तो अगर मैंने इंटरप्ट डिसेबल कर भी दिए तो अगर मेरे पास मल्टी कोर्स हैं, मतलब अगर मेरे पास 4 कोर्स हैं, दिस इज अ कोर 1, दिस इज अ कोर 2, कोर 3 एंड कोर 4, ठीक है, मल्टी कोर प्रोसेसर है मेरे पास, तो ऐसा हो सकता है कि इंटरप्ट सिर्फ ये दो कोर्स ही हैंडल करते हो, ये दोनों हैंडल्स नहीं करते हो, ठीक है. तो ये सिर्फ उन्हीं चिप्स, ये क्या करेगा आपने डिसेबल किए जब, तो चिप्स एज डिसेबलिंग इंटरप्ट ओनली अफेक्ट ओनली द सीपीयू दैट एग्जीक्यूट द डिसेबलिंग इंस्ट्रक्शन. तो आपने जब इंटरप्ट डिसेबल किए तो उन्हीं कोर्स को, उन्हीं चिप्स को ये डिसेबल करेगा जो इंटरप्ट्स हैंडल कर रहे हैं. बाकी प्रोसेसेस तो बाकी सिस्टम से भी चल रहे हैं, तो वो प्रोसेसेस कैसे डिसेबल होंगे? आपको पता है ना, जब मैंने आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी इन योर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, आप क्या करते हो, मास्टर स्लेव के फॉर्म में भी काम करते हो. And if you talk about your configuration of your systems, you are having a synchronous and asynchronous configuration. That is, in asynchronous configuration, you are having a master and slave. Means each CPU is not having the equal rights. तो हम क्या करते हैं, अपने टास्क हर एक कोर पे डिवाइड किए होते हैं हमने कि ये CPU सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस मैनेज करेगा, या फिर ये CPU सिर्फ इंटरप्ट्स को मैनेज करेगा, या फिर ये CPU सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस को मैनेज करेगा. So we divide our task as per the on the multi-core systems. So when we talk about the multi-core system, this disabling interrupts solution will not work on that part, because if you disable the interrupts on one of the core or the cores which is
handling the interrupts in the system, it will not disable the execution of instructions which is handled by the another CPUs. राइट तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे सीपीयूज पे भी कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हाई प्रायोरिटी के हों तो वो उसको उस टाइम पर ऑपरेट करे fine, so it is also not possible on multi-core systems, and the other one will continue and can access the shared memory. This is possible because if you are not disabled the another cores, it is possible that other one can continue and access the shared memory. That is your critical section. So there are a lot of problems we are having in these solutions, so this solution will not going to work for us. देखो पहले मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पढ़ाती जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि वी आर मूविंग थ्रू. वी विल डिस्कस द करेक्ट सॉल्यूशन एट द एंड. We are having a multiple solution, but which solution is correct, which is following which criteria, you should better get to know so that you will get to know the correct solution of this problem. करेक्ट सॉल्यूशन पढ़ने से पहले बाकी सारे सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है और कौन सा नहीं है, right? So that you can differentiate. So disabling interrupt is not a good solution. We are not okay to adopt this solution. So this solution is clear with everyone. But हम ये solution follow नहीं करते हैं, पहली बात. Disabling interrupt is clear. First solution we are having for critical section problems. Yes, ma'am. Yes? Okay. Moving further. We are having second solution that is lock variables. अब देखो अब हम next solution पर आए हैं जिसे कि हम lock variable बोलते हैं. Lock as the name says that we are having a lock, right? जैसे कि वॉशरूम्स की बात करते हैं. आप लोग वॉशरूम्स वेयर वी आर हैविंग अ पब्लिक वॉशरूम्स और पब्लिक बाथरूम्स हैविंग, क्या होता है जब वी आर हैविंग अ मल्टीपल वॉशरूम्स इन द एरिया. वॉशरूम्स के गेट पर क्या होता है, एक नोब यूज होता है. इफ यू हैव सीन, वो ट्रायल रूम में भी यूज होता है. इफ इट इज ऑक्युपाइड it will show you the occupied in the red color of the background, right? And if the knob, if this is vacant, it will show you the vacant with green color of knob, it with green color. Have you seen this? When we have used the public washrooms में कैसे अगर वो occupied होता है तो किसी ने अगर अंदर से उसे लॉक किया है तो बाहर से वो दिखाता है कि it has been occupied, someone inside is there. Have you seen this? Also in your trial rooms, if the trial room is occupied, if you use that knob, it is showing you that it is occupied. If there's some person is standing outside that room, it is showing that person that that room is occupied right now, somebody is inside, right? Also, but it is vacant, that knob can represent that this is vacant. तो क्या हुआ, वो एक वेरिएबल हुआ जो आपको दिखा रहा है कि जो वो रूम है, दैट इज अ ट्रायल रूम और अ वॉशरूम, it is occupied or not. The same concept applicable here in the lock variables. We are using a variable named as lock here. What we are doing, we are using a variable here that is called lock. अब इस लॉक की, अब देखो ये जो लॉक है वो हर कोई शेयर कर सकता है. वी आर हैविंग अ ग्लोबल वेरिएबल हियर इज लॉक. अब ये जो लॉक है ये दो ही वैल्यूज शेयर करता है. कौन कौन सी, 0 और 1. ये लॉक वेरिएबल है वो दो ही वैल्यू होल्ड करता है. कौन कौन सी वैल्यूज, 0 वैल्यू और 1 वैल्यू. ठीक है. जब लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है, प्रोसेस क्या करता है, उसको वैल्यू 1 करता है और क्रिटिकल रीजन में एंटर कर जाता है. जैसे कि इसी की इस वॉशरूम की बात करते हैं पहले. यू आर हैविंग अ नोब, यू आर हैविंग टू वैल्यूज, ऑक्युपाइड और वेकेंट, राइट? व्हेन इट इज वेकेंट, when this washroom is vacant, you go inside and change the value to occupied. When the value is vacant, you go inside and change the value to the occupied, right? Change the status of the room is occupied. When you comes outside, you again change the value to the vacant. Are you getting what I'm saying here? Relate this concept here. When we go inside the trial rooms, we change the values from vacant to occupied. When we come outside the trial rooms, we change the values from occupied to vacant. This is what we are doing. Agree?
right? This is what we are doing whenever we are using trial rooms. When I go inside, I will change the value from vacant to occupied. When I come outside, I change the value from occupied to vacant. The same concept is here. अब critical section को use करने के लिए मैंने एक lock use किया है, ठीक है? अब मैंने critical section को use करने के लिए क्या use किया है? एक lock. जैसे ही मैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करूंगी, मैं उसकी वैल्यू चेंज करके एंटर करूंगी. बट आई एम सेइंग हियर इज व्हेनेवर आई विल गो, अब देखो अब लोग की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 हो सकती है, तो 1 हो सकती है. मेरे पास लोग वेरिएबल की दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, आइदर 0. What I am saying here is
Am I audible now? Yes, ma'am. Give me a minute. Huh? My system is having some problem. It is not working. Is it visible? Okay. So I was discussing the log variable with you. We are having a solution of a log here. मीन्स मैंने क्या किया है, अपने क्रिटिकल सेक्शन को एक लॉग लगा दिया है. जो भी अब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहता है वो लॉग वेरिएबल के थ्रू करेगा. लॉग वेरिएबल्स की दो ही वैल्यू होंगी, या तो 0 या तो 1. 0 रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका क्रिटिकल सेक्शन वेकेंट है, ठीक है, और 1 रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका क्रिटिकल सेक्शन ऑक्युपाइड है. ठीक है. अब देखो किसी भी प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है, दिस इज अ क्रिटिकल सेक्शन, राइट, एंड बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन दे हैव टू यूज अ एंट्री गेट एंड एग्जिट गेट आफ्टर एग्जिटिंग, राइट. यूज करने के बाद उसे एग्जिट करना है, और यूज करने से पहले उसे एंट्री गेट को क्वालिफाई करना है. तो 0 और 1 दो वैल्यूज हैं आपके लोग वेरिएबल्स की. जब भी आपका प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है और वो क्रिटिकल सेक्शन वेकेंट है, इट मींस लोक वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. इफ योर क्रिटिकल सेक्शन इज वेकेंट द वैल्यू ऑफ द लोक वेरिएबल इज 0. तो क्या करेगा कोई प्रोसेस, लोक वेरिएबल की वैल्यू को 1 करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, राइट. और जैसे ही वो एग्जिट करेगा तो क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करने के बाद लोक वेरिएबल की वैल्यू को 0 करेगा और क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट हो जाएगा. Here is a code of this solution we are having for log variables. This is a line of code we are using, right? This solution. Now understand this code. What is the code says that this is a solution actually. अभी जितने भी solutions होंगे, this is with code and this is also asked in your question paper. Ki write the code for the log variable solution, right? So you have to understand this code. What this code says that the first line of code, see we are using here a while loop, and here we are using while loop with this semicolon. If I am using if I am using semicolon at the end of the loop, what it says, मैं किसी भी लूप के बाद सेमिकोलन कब यूज करती हूँ. आप अगर लूप्स यूज करते हो, आपने प्रोग्रामिंग में किया होगा, तो हम लूप्स के बाद सेमिकोलन यूज करते हैं नहीं. जनरली हम जनरली लूप्स के साथ बाद सेमिकोलन नहीं यूज करते. लेकिन अगर मैंने लूप के बाद सेमिकोलन यूज किया, उसका क्या मतलब है, एनीवन who knows about the concept? What it says,
ओके, बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग, लूप कैसे चलाते हैं हम लोग। अगर किसी भी लूप की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होता है, वी आर हैविंग अ कंडीशन हियर, राइट। इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू, when I am using a loop, if this condition holds true, there are some set of statements which will execute, right? Then we will go and again check this condition. If this condition true, this set of statements will execute. We will go check this condition again, this set of statements will execute. When this condition holds false, we will exit from the loop. यही होता है, राइट। तो बेसिकली अगर मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊं तो कैसा होता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो क्या होगा, जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये जो लूप है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं दैट विल एग्जीक्यूट। सो वी विल गो एंड अगेन चेक टू द कंडीशन। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या करते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, फिर से कंडीशन चेक करते हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप से एग्जिट कर जाते हैं, राइट। तो क्या होता है, वी एग्जिट फ्रॉम द लूप। इफ द कंडीशन होल्ड्स ट्रू, वी एंटर इन द लूप। ठीक है। अब देखो ये जो सेमीकोलन मैंने यहाँ पर यूज किया है, देखो ये बहुत ब्यूटीफुल सेट ऑफ कोड है। दिस होल्ड्स अ वन ट्रैप हियर। आप इसे समझने की कोशिश करो। ये जो सेमीकोलन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक ट्रैप जनरेट किया है। मीन्स अगर मैं किसी भी लूप के बाद ये सेमीकोलन लगा देती हूँ, इट मीन्स आई एम क्रिएटिंग अ ट्रैप इन दिस लूप। व्हाट डज इट मीन्स, देखो यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, कोई कंडीशन चेक हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन बाद में समझते हैं, पहले इसको जर्नलाइज्ड टर्म्स में समझते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। इज इट करेक्ट? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। इज इट करेक्ट? राइट। अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं, ट्रू होगी, सेट ऑफ एग्जीक्यूशन करेगा, फिर से लूप में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर से आप वापस आएगा और यहाँ पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने ये जो स्टेटमेंट्स तो है ही नहीं, end of loop means this loop doesn't contain any set of statements, it is having a self loop. What I said here is, हमने क्या किया, ये बनाने की बजाय यहाँ पर क्या किया, जो कंडीशन लगाई उसी कंडीशन को हम बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं। कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने दी नहीं, मतलब इस लूप की कोई बॉडी ही नहीं है। समझ रहे हो, इस लूप की कोई बॉडी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं है, तो वो बार बार क्या करता रहेगा, इसी कंडीशन को चेक करता रहेगा। जो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या जनरेट किया, एक ट्रैप जनरेट किया है कि दिस लूप विल चेक दिस कंडीशन अंटिल द कंडीशन विल बिकम फॉल्स और ट्रू। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो बार बार इसी कंडीशन को चेक करता रहेगा और इसी लूप में फंसा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर स्मार्टली एक ट्रैप जनरेट कर दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, व्हाट आई हैड डन हियर? ताकि मेरा प्रोसेस इसी लाइन में बार बार रहे, बार बार एग्जीक्यूट करता रहे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। मतलब मैंने उसे इसी लाइन में फंसा के रखा है, वो आगे नहीं जा पाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्रैप हियर। आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. यस। सो यू कैन सी नाउ दिस कोड। अब देखो कंडीशन की बात करते हैं। ये लूप मैंने आपको बताया व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। नाउ व्हाट आई एम यूजिंग, I am using a loop, while loop, in which I am giving a condition here. If the log is not equals to 0, log की मान लेते हैं वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमने 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, राइट। अगर मेरे log वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पर क्या चेक किया, log is not equals to 0, मतलब अगर 0 is not equals to 0, कंडीशन क्या है, ट्रू या false? 0 is not equals to 0, is it false? कंडीशन फॉल्स है। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर मैं साथ साथ ये आपको फ्लो चार्ट भी बनाकर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है। If you are checking the condition, if condition is true, the process will remain in this loop. If the condition will false, the process will exit from this loop.
ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, प्रोसेस आपका इसी लूप में रहेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जो प्रोसेस है वो लूप से एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, स्मार्टली एक ट्रैप जनरेट किया हुआ है। अगर मेरी लोक वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो 0 क्या है, फॉल्स। 0 का मतलब क्या है कि आपका क्रिटिकल सेक्शन वेकेंट है, राइट। वेकेंट है तो उसे एंट्री मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 0 की वैल्यू, अगर वैल्यू 0 है इट मीन्स द कंडीशन इज फॉल्स, इट विल एग्जिट फ्रॉम द लूप, इट विल नॉट स्टे इन दिस लूप, राइट। तो जैसे ही वो लूप से एग्जिट होगा, मतलब लूप क्या है, स्टेटमेंट क्या हो गई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इट विल नॉट गो एंड अगेन चेक द कंडीशन, राइट। द लोक वेरिएबल विल बिकम 1 हियर। अब जो लोक की वैल्यू 0 थी उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, 1। तो वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी लोक वेरिएबल की वैल्यू 0 है इट मींस क्रिटिकल सेक्शन वेकेंट है। क्रिटिकल सेक्शन में आपका प्रोसेस एंटर कर सकता है, लेकिन एंटर करने से पहले मैंने क्या लिखा है, उसे लोक वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, राइट। उसने लोक वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर चेंज किया, वैल्यू क्या हो गई, 1। अब जब मान लो मेरा प्रोसेस P1 यहाँ है और कोई और प्रोसेस आना चाहता है, मान लेते हैं P2 एंटर करना चाहता है, ठीक है, P2 wants to enter in this section, क्रिटिकल सेक्शन, तो देखें क्या P2 आ सकता है यहाँ पर, लेट अस चेक। P2 आना चाहता है, तो P2 आना चाहता है, तो अभी मेरे पास लोक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 है। मैंने बोला ना कि कोई भी प्रोसेस है वो एक ही ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा है, लोक, तो लोक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, करेक्ट, राइट। तो जब कंडीशन ट्रू है तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, अभी भी 1 नॉट इक्वल्स टू 0, ट्रू है, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रैप जनरेट हो गया, तो आपका प्रोसेस 2 अंदर कभी एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है, इसी लूप को बार 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 एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, what we are doing here in this solution, this is only a 4 line of code we are having, but it will contain a logic in between. This line of code has yes, what I am saying here is when your P2 wants to enter in this critical section, देखो P1 already enter कर चुका है, कंडीशन फॉल्स थी, P1 एंटर किया, अभी हम P2 की बात कर रहे थे कि P2 क्या है, P2 एंटर करना चाहता है, ठीक है, P2 एंटर करना चाहता है, तो P2 एंटर करेगा तो लॉक जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, क्योंकि P1 एंटर किया, P1 ने जब एंटर किया तो लॉक वेरिएबल की वैल्यू को 0 से 1 कर दिया, वी नो दैट, राइट, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है तो वो उसकी वैल्यू को चेंज करके उसको एंटर कर सकता है। तो P1 जब एंटर किया क्रिटिकल सेक्शन में तो लोक वेरिएबल की वैल्यू 0 से क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब कोई और प्रोसेस एंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो आएगा, इस कोड को एक्सेस करेगा, तो अभी लोक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1। 1 is not equals to 0, is that condition is true? Yes, it is true. This time condition is true. If condition is true तो क्या होता है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो क्या 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल है, तो फिर से कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करता रहेगा, तो बेसिकली आपका जो P2 प्रोसेस है वो इसी ट्रैप में फंस जाएगा, वो इस ट्रैप से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी वो एग्जिट नहीं कर, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी वो लूप से एग्जिट नहीं कर पाएगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा, राइट। तो जब तक P1 क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट नहीं करेगा कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग दिस नाउ, टिल P1 will not exit the critical section, क्योंकि हमें पता है कि अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा तभी लोक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। P1 जब, अब देखो P1 को कंप्लीट करते हैं, P1 ने क्या किया, क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस किया, फिर जब उसको एग्जिट करना है तो मैंने क्या बोला था, जब उसे एग्जिट करना है तो वो लोक वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेगा, 1 से 0 और एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अब P2 को एंट्री मिल सकती है, कैसे, अब लोक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 है, अब P2 को एंटर करना है तो वो क्या करेगा, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस इट इज, this is true or not, this is not true, it is false, so it can enter into the critical section, तो फिर से वो क्या करेगा, लोक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा,
राइट। अब जब तक P2 है कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता। समझ रहे हो? सॉल्यूशन क्या है? व्हाट दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट विल से, इफ Yes, ma'am. some of the process is having zero value for the lock variable, it means critical section is vacant, it can enter into the critical section that code defines. If the lock variable contain the value 1, it means critical section is occupied, no other process can enter into the critical section. This is the lock solution, lock variable solution says. Is that solution is clear? अभी तक जो मैंने कोड एक्सप्लेन किया है, राइट? सो दिस सॉल्यूशन इज आल्सो नॉट करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, बट ये सॉल्यूशन भी करेक्ट नहीं है, ये वर्क नहीं करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी इसमें वायलेट हो सकता है। अब पहले तो आप इस पे दिमाग लगाओगे कि कैसे, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ कि ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रहा है, कैसे हो रहा है अब आप लोग बताओगे मुझको। ये 4 लाइंस लिख लो अपनी अपनी नोटबुक्स में, कैसे पॉसिबल हो सकता है, यू विल जस्ट थिंक ऑन इट। तो मैं क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन। यू विल जस्ट राइट दिस कोड in your notebooks, anywhere you want to write it down, and let me know in the next session then how we can violate the mutual exclusion, मतलब processes म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को भी वायलेट कर पा रहे हैं, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस एंटर कर सकते हैं, इसमें कैसे करेंगे वो आपको मुझे बताना है नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? सो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन हियर विद दिस, and we will continue this discussion in the next session.